Alhamdulillah, it was great. Almost we got up to 10 days vacations. Am I Wow. right? Yeah, From Micro Guru, we have only 8, but from education side, if I'm talking, then we have got 10 days almost in our vacations. that's great. I'm on vacations from the past 4 months because हमारी winter vacations होती हैं, that's why. Wow, means you are enjoying on your full Yeah, version. but our vacations are also over now. I will be heading to university back like in 3 to 4 days. So Oh. So, best of luck for your future endeavors. thanks, ma'am. And have we done from with our listening module? We have done with our listening module, I think. Yes, I think because it's my second week here, but in the last lecture it was mentioned that our listening module is completed and we will be heading to. I'm not sure, like either we will be doing reading or something, but yeah, listening is completed. No, we are going to start reading today because listening module has done properly, and I think we all have got how all the strategies, and we all get to know that how to tackle the high bands and IELTS listening module. If anyone has still any queries about listening, they can easily ask questions on Slack channel, or they can easily ask for help. Moderators are there to help you. And let's start our reading module. So before starting, I want to know from all of you guys that how do you know about what do you know about the reading module? Are you guys okay with English, or I should start in Urdu? Ma'am, English is fine. I think that I, in this we'll be learning a lot, and while speaking, I think that we will catch up the communication. yes, because we are here to crack IELTS English test, so we should go ahead with English speaking. Already I am not very much fluent in English, but I am also learning. This is also my learning process. And when you are going coming live in some in front of everyone else, so there are something which are getting into your nerves to make you um, what should I say, to make you nervous that you can't speak in front of everybody, but it's still there are barriers which we have to tackle down. So when we are starting to speak up in front of everybody, then we will be fluent. Am I right? Yes. Exactly, ma'am. You're right. There are total 16 participants, but only 2 and 3 are replying to me. Is there any difficulty you are having? Then we can go with mixture of English and Urdu. I think we should go ahead with mixture because nobody is replying. So, what do you know, guys? What do you know about IELTS reading? Do anybody have gone through IELTS reading test before, or you have practiced on your own side because you have got almost a week? So, did you get the free time to practice your IELTS reading? किसी ने पहले IELTS reading का टेस्ट किया है? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, you are audible. I, I have not done it. So Okay. Means nobody know about what is the pattern of IELTS reading. So let me give you introduction first. What are the main parts of the child reading module, and what are the tips and strategies we will also going to learn this, and what are the main things which we should follow to get high bands in IELTS reading. So IELTS reading strategies, I will say कि हमारे पास इसमें we have 3 passages given. इसमें total 3 passages we have to read and give the answers to them. In first passage,
हमारे पास हमें दिया होते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो कि ऐसे हो सकते हैं कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, या सेंटेंस की एंडिंग आपको फिल करनी हो, या देयर मस्ट बी सम keywords which you have to find and match with the paragraphs। तो 3 पैसेजेस में से आपको उनकी रीडिंग करके आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन को मैच करना होता है, और एमसीक्यूज को जो है वो फाइंड करना होता है कि विच करेक्ट एमसीक्यूज शुड बी फॉर दिस गिवन पैसेज, या कोई भी जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसके एंडिंग में आपको नाम एंड सेंटेंस का एंड कैसे करना है। तो वो जो आपको देखना होता है इस तरह। किसका हैंड, किसी का हैंड रेज है? यस मैम, मेरा क्वेश्चन है जो आप अभी आपने स्क्रीन शेयर की हुई है, या आप वैसे ही बता रही हैं, क्योंकि स्क्रीन मैं विजिबल वैसे नहीं है। ही, हाँ मैं वैसे ही बता रही हूँ, मैंने ओके स्क्रीन ओके शेयर मैम। नहीं की है, अभी जी मैं मैम, सिर्फ ठीक है तो। इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ओके मैम, ऑल राइट। हम्म। सबको मेरी आवाज आ रही है, क्लियर हो रहा है जो मैं बता रही हूँ? Yes, यस ma'am. मैम। Audible यस and you मैम, are हाँ। speaking in a very good way. अच्छा, तो मैंने अभी तक क्या बताया? मैंने बताया कि 3 पैसेजेस हमें गिवन होते हैं। 3 पैसेजेस में से हमें डिफरेंट क्वेश्चंस दिए होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन बी, कि मल्टीपल चॉइस होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, मैचिंग हेडिंग्स होगा, कोई कीवर्ड्स दिए होंगे वो हमें मैच करने होंगे, या उनकी इंफॉर्मेशन देखनी होगी कि इस पैसेज में से दी हुई है। टोटल हमारे पास पैसेजेस ऑलमोस्ट जो होते हैं ना वो ई या एफ या जी तक होते हैं, मींस के कभी 5 पैराग्राफ होंगे, कभी 6 होंगे, कभी 7 होंगे। जी एच से ज्यादा एक्सीड नहीं करते पैराग्राफ। और आपको क्या करना है, आपको सिंपल उसमें रीडिंग करनी है। रीडिंग करके आपको ऊपर ऊपर से जैसे रीडिंग करते हैं ऑलमोस्ट हम, जैसे व्हेन वी आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स समवेयर, तो हम क्या करते हैं, जो बिल बोर्ड्स आ रहे होते हैं बीच में, तो हम उसकी रीडिंग करते करते हुए जा रहे होते हैं। अब हम ईच एंड एवरीथिंग तो उसकी नहीं पढ़ रहे होते, डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन वी गॉट टू नो कि ये किस चीज का बिल बोर्ड है, जिसका भी हम हेडिंग पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये इस बारे में बात हो रही है। तो अगर हम हेडिंग पे हेडिंग पढ़े ही ना हमारे पैसेज की, तो हमें पता नहीं चलेगा कि पूरा पैसेज किस बारे में बात कर रहा है। बहुत दफा क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हेडिंग पढ़ते ही नहीं है, और फिर जो पूरा जो पैसेज होता है उसको पढ़ के और आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो दे डोंट नो कि किस पैसेज किस बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले जो हमें काम करना है वो हमें इसकी हेडिंग पढ़नी है कि हेडिंग क्या होगी। फिर ऐसा ऐसा उसके पैसेज पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस पे देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस हैं, उनको किस तरह से, हर क्वेश्चन की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, किस तरह से उसको जो है वो टैकल करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो किस तरह से उसको टैकल करना है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हो सकते हैं कि मैचिंग हेडिंग्स है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, सेंटेंस हेडिंग है, यस नो नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरल अगर मैं बात करूं आज, क्योंकि हमारा फर्स्ट डे है, तो हम जनरल बात करेंगे किस तरह से हमारी कौन सी स्ट्रेटजीज हमें यूज करनी चाहिए। एंड बाय टुमारो वी आर गोइंग टू हैव इन डिटेल कि कौन सी टिप्स स्ट्रेटजीज जो है वो हमें यूज करनी चाहिए टू टैकल आइल्स रीडिंग टेस्ट। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? No, ma'am. Let me again share my screen. Is it now visible? यस मैम, अब हो रही। Okay, thank you. IELTS reading, how to crack high bands in IELTS reading by me, obviously.
It's not working properly. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एंड स्कोरिंग, कि स्कोरिंग किस तरह से हो रही है, उसका फॉर्मेट क्या है। अगर आइल्स रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग या कोई सा भी मॉड्यूल हम करने जा रहे हैं आइल्स में, तो हमें उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। अगर हमें फॉर्मेट नहीं पता होगा तो चाहे आपकी इंग्लिश कितनी ही फ्लुएंट हो और आप कितने ही ग्रामेटिकल जो है वो एक्सपर्ट हो, पर आप जो है वो उसको हाईएस्ट बैंड को जो है वो स्कोर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू डोंट नो द स्ट्रेटेजी व्हाट द फॉर्मेट दे वांट। तो अगर आप फैमिलराइज नहीं होंगे उसके फॉर्मेट से, तो आपके बैंड्स जो हैं वो सफर कर सकते हैं। The IELTS exam is scored a 9 band scale with each band representing a level of proficiency. टोटल 9 बैंड होते हैं, जिसमें से अगर आप जो है वो 7 बैंड तक ले लेते हैं तो इट्स वेरी गुड। और इफ यू आर intending to have scholarships in US, which we are all here to apply for the scholarships for US especially, तो उसमें आपको 7.5 स्पीकिंग में चाहिए ही चाहिए। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। एक्चुअली वो लाइट का मसला हो गया है। प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, अभी आपकी आवाज आ रही है? हाँ, वो लाइट का मसला हो गया था ना, लाइट चली जाती है तो। आई एम फ्रॉम माई मोबाइल डेटा, तो अगर नेट का इशू होता है तो काइंडली एडजस्टेड। अच्छा, प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। जो टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा इशू होता है ना, वो इस रीडिंग मॉड्यूल में ही होता है। चाहे आपको रीडिंग में आप एक्सपर्ट हो, आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई हो, आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हो, बट यू डिडंट गो फॉर टाइम मैनेजमेंट, आपने टाइम नहीं चेक किया हो अपनी रीडिंग के साथ साथ कि टाइम आप कितना ले रहे हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होता है कि इसमें 60 मिनट्स गिवन होते हैं, और हम क्या करते हैं, हम जो है वो 60 से ज्यादा मिनट्स ले रहे होते हैं। मतलब कभी 80 मिनट्स हो जाते हैं, कभी 100 मिनट्स भी हो जाते हैं, क्योंकि रीडिंग में हम काफी टाइम जो है वो स्पेंड कर देते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है ना, वो होती है हमारी आइल्स रीडिंग में। अगर आइल्स रीडिंग में आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो आपका बैंड जरूर सफर करेगा, आपको लो स्कोर ही मिलेगा। तो हम आपको क्या करना है, यू शुड बी फेमिलियर कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं और किसको किस तरह से टैकल करना है और किस तरह से आपको उसका टाइम मैनेज करना है। कुछ ऐसी वीडियोस हैं आपको मिलेंगी यूट्यूब पे, जिसमें कहते हैं कि अगर यस नो नॉट गिवन वाला क्वेश्चन या मैचिंग हेडिंग्स वाला क्वेश्चन ये मुश्किल होता है तो आप पहले कर लेंगे, आपका टाइम बच जाएगा। और जो शुरू के क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं। आई विल सजेस्ट कि मैंने ये प्रैक्टिस करके देखा है, आप सब अपने एंड पे ही प्रैक्टिस करके देखेंगे कि विच स्ट्रेटजी सूट्स यू बेस्ट, कि आपके लिए कौन सा जो है वो मेथड ज्यादा इजी है, ज्यादा बेस्ट है, कि आप किस में ज्यादा टाइम लेते हैं तो आप वो पहले जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। बट आई विल सजेस्ट यू कि मैंने जब प्रैक्टिस करके देखा तो मुझे यही लगा कि जब हम शुरू वाले क्वेश्चंस हैं जो इजी हैं वो कर लेंगे, तो हमारे ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चंस हो जाते हैं। उसके बाद यस नो नॉट गिवन आता है और मैचिंग हेडिंग्स आता है, जो कि बहुत टाइम लेता है। तो वो आप बाद में ही करें तो बेहतर है, बिकॉज इफ यू गो फर्स्ट ऑन दिस मैचिंग हेडिंग्स या फिर यस नो नॉट गिवन वाले पे आप पहले चले जाएंगे, तो व्हाट वुड हैपन कि आप उसमें ही सारा टाइम लगा देंगे। तो
आप उसमें ही सारा लाइन लगा देंगे और आपको जो है बाकी जो 18 क्वेश्चन जो ऊपर इंतजार कर रहे होंगे वो तो फिर रह ही जाएंगे। तो इट विल बी द बेस्ट प्रैक्टिस कि आप पहले शुरू से जैसे उन्होंने दिया हुआ है फॉर्मेट उसी फॉर्मेट के हिसाब से चलें। शुरू में जो उन्होंने दिया है क्वेश्चंस इजी वो करें, उसके बाद अब यस नो नॉट गिवन पे आए, क्योंकि हम उसकी टिप्स और स्ट्रेटजीज जिस तरह से उसको टैकल करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे और इट विल बी इजी फॉर यू। ऐसी लास्ट छुट्टियों से पहले मैं कुछ एक दो वीडियोस देख रही थी, उसमें मैंने देखा कि कुछ इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका बैंड जो है वो विद इन एन आवर जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा 5.5 से। उसमें आई हैव नोटिस दिस बाय माई सेल्फ कि अगर आप 5.5 आपका बैंड आ रहा है रीडिंग में, तो अगर आप वो टिप्स एंड स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे तो आपका बैंड अप टू 7 उसी वक्त उसी स्ट्रेटजीज को फॉलो करके विदाउट एनी प्रैक्टिस आपका बैंड जंप कर जाएगा 5.5 5 से 7 तक। तो टाइम मैनेजमेंट इज द की, अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट, इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग कोई सा भी आपका मॉड्यूल हो उसमें आपको अपनी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी इंक्रीज करने की इन्हांस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इट इज रियली नीडेड कि यू आर प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि आप अपनी लैंग्वेज जो है बिल्कुल 100% जो है वो सही करने बैठ जाएं। Sentence structure that will be needed for your writing module, vocabulary, the main thing is that कि आप अपनी vocabulary increase करें। जो सबसे ज्यादा लैक आता है बैंड स्कोर का वो वोकेबलरी की वजह से ही आता है। व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस और आई हैव लिसन टू एवरीबॉडी के जो वोकेबलरी में जो हमारे पास राइटिंग हो रीडिंग हो या लिसनिंग हो या फिर आपके पास स्पीकिंग हो, अगर आपके पास सिनोनियम्स ज्यादा होंगे एक ही वर्ड के तो यू कैन गो विद अ हाई बैंड स्कोर। बिकॉज अगर आपके पास सिनोनियम्स नहीं होंगे जो कि सारे मॉड्यूल्स में यूज हो रहे हैं और आपको सिर्फ एक ही, जैसे अगर मैं कहूँ कि गो का जो है हमारे पास एक ही जो गो फास्ट, इसका हमारे पास हमें सिनोनियम पता ही नहीं है, या रन रन क्विकली फास्ट फास्टर क्विक रैपिड, ये सारे सिनोनियम्स एक ही चीज के लिए यूज होते हैं। अगर हमें आएगा ही नहीं, हमें सिर्फ फास्ट पता है, अब फास्ट का हमें सिनोनियम नहीं पता है तो हम आगे क्या लिखेंगे? तो ये क्या होगा कि एग्जामिनर पे ये इम्प्रेशन जाएगा कि दे डोंट नो हाउ टू डू यूज द सिनोनियम्स और उनकी जो वोकेबलरी बैंक है वो बहुत जो है वो कंसाइज है। सो वी नीड टू वर्क ऑन वोकेबलरी फ्रॉम टुडे। के बाद डेवलप टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज। टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज में क्या है कि अपना टाइम केयरफुली जो है ना वो उसको प्लान करना है। जब भी मैंने बताया कि किस जो है वो स्ट्रेटजी किस टाइप के क्वेश्चंस पे कितना टाइम आपको देना है। जो शुरू के क्वेश्चंस हैं वो जल्दी टाइम में हो जाने हैं, वो 20 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लेने हैं शुरू के 15 क्वेश्चंस को। आगे जो यस नो नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस या मैचिंग हेडिंग्स वाले क्वेश्चन उसमें आपको स्किमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक्स पे जाना होता है, सारे पैसेज पढ़ना होता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा टाइम, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। पर आपको कम टाइम देना है इजियर वंस पे और ज्यादा टाइम अगर आप दे रहे हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे तो ये ध्यान रखें कि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन जिन पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वो आप वाकई ही उनको क्रैक कर पा रहे हैं उनके आंसर्स को, या अगर वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो यू शुड लीव देम एट वंस, उनको उसी वक्त वहीं पर छोड़ दें और फिर दूसरे क्वेश्चंस पे जाएं। किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है व्हाट आई एम सेइंग? ओके, मीन्स कि अगर आपको कोई क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट लगता है और आपको लगता है कि है ना आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आप उस पर 5 मिनट देते हैं 10 मिनट देते हैं, आपको नहीं पता कि आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कब 25 मिनट चले जाते हैं, यू डोंट नो। तो आपको अगर 5 मिनट देने हैं, आपको एक क्वेश्चन को 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है अगर वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वैसे तो आपको एक क्वेश्चन पे 2 मिनट्स लगाने, अगर आपने 5 मिनट्स लगा दिए एक क्वेश्चन पे और आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो यू शुड लीव इट। बिकॉज अगर आप मैचिंग हेडिंग्स पे जाएं तो बाकी हेडिंग्स अगर आप मैच कर लेंगे ऑब्वियसली जो बच जाएगा वो दूसरी उसका आंसर होगा। सो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है ताकि आपका टाइम जो है वो
बच सके। आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। Keywords in the question before reading the text. This will help you find the information more quickly and accurately. Identify keywords. ये जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि जब हम जो है वो रीडिंग टेस्ट कर रहे होते हैं, रीडिंग मॉड्यूल होता है हमारा, हमने रीडिंग स्टार्ट की है, अब हमने क्या किया, हमें जल्दी जल्दी हम चाह रहे हैं कि हमारा जल्दी से जो है वो टेस्ट हो जाए और अच्छा हम टाइम वेस्ट ना करें। तो व्हाट वी डू, वी जस्ट अवॉइड टू रीड द रीडिंग हेडिंग ऑफ द पैसेज। हम हेडिंग पढ़ते ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि पूरे में बात क्या हो रही है। और हम जो है वो अगर आपने हेडिंग नहीं पढ़ी तो ऑब्वियसली आप सारा जो है वो आपका पैसेज का जो पर्पस होगा ना वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो हेडिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप किसी जगह पे जाते हैं और आपको जाना है लाइब्रेरी में, पर आपने उसकी ऊपर की जो है वो बोर्ड पढ़ा ही नहीं है और आप चले गए हैं ग्रोसरी स्टोर में, तो ऑब्वियसली आप पूरे ग्रोसरी स्टोर में घूमते घूमते रहेंगे पर आपको बुक्स नहीं मिलेंगी। तो यू शुड नो फर्स्ट हाउ टू टैकल द रीडिंग पैसेज। फर्स्ट आपको जो है वो रीडिंग का हेडिंग पढ़नी है। उसके बाद आपको जो है कीवर्ड्स अगर मैचिंग आपको करनी है, जैसे एमसीक्यूज आ गए हैं, तो एमसीक्यूज में आप क्या करेंगे, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको पहले पैसेज पढ़ना है। क्वेश्चंस को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अगर आपने क्वेश्चंस को टच किया तो आपका पूरा पैसेज में आप कंफ्यूज ही रहेंगे किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कल। और कीवर्ड्स हैं, जैसे अगर हमें कभी मैच करना होता है, कोई साइंटिस्ट का नेम दिया हुआ है, कोई जो है वो थ्योरी का नेम दिया हुआ है, कोई नोबेल प्राइज का नेम दिया हुआ है कि ये नोबेल प्राइज जो है वो किसको मिला था। लेट सपोज कि वो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि ये नोबेल प्राइज बिलोंग करता है इस साइंटिस्ट को। तो नोबेल प्राइज जहां भी लिखा होगा उस कीवर्ड को हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे और उसको हाईलाइट करके अपने पैसेज में और फिर उससे मैच करेंगे। तो ऑब्वियसली वी विल गेट टू नो दैट टू विच साइंटिस्ट इट बिलोंग्स टू। अच्छा, मेक श्योर कि यू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। वाई? बिकॉज इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। अगर आप आंसर कर क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग भी देंगे द सेम मार्क्स। जैसे अगर कोई आंसर है, अपने सारे आंसर्स आप क्लियरली देते हुए आ रहे हैं, कुछ आंसर्स थे, कुछ क्वेश्चन थे जो आपको डिफिकल्ट लग रहे थे, आपने उस पर 10 मिनट्स लगाए, 15 मिनट्स लगाए, बट यू आर नॉट गेटिंग योर आंसर प्रॉपरली, तो आप उसमें जो है वो तुक्का मार दें, जो कि जो है हमारी स्पेशलिटी भी होती है और कभी कभी लग भी जाता है तुक्का। तो इसके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यू शुड गो टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. Okay. Practice regularly and take notes to enhance your reading skills. This is very, very, very much important that you do practice regularly. Because कोई भी, इवन कि दुनिया का अच्छे से अच्छा टीचर भी आप कुछ भी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दे, बट यू आर नॉट फॉलोइंग हिम कि वो क्या ट्रिप्स बता रहा है या वो क्या कह रहा है, जब तक आप अपने एंड पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू आर नॉट गोइंग टू नो व्हाट आर द स्ट्रेटजीज और टिप्स और ट्रिक्स आर गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर टेस्ट। क्योंकि आपको पता है कि आपका माइंड किस तरह से वर्क कर रहा है, आपको किस तरह से अपनी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बनानी हो सकता है कि अगर मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट वाले पार्ट को पढ़ने से आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, बट व्हेन यू आर डूइंग प्रैक्टिस एंड यू आर गेट टू नो कि अब अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरे तो अगर मैं फर्स्ट वाला डिफिकल्ट क्वेश्चंस करता हूँ तो मेरा टाइम जो है वो जल कम लगता है। तो मैं मेरे लिए ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस ये होगी कि मैं पहले डिफिकल्ट क्वेश्चंस करूँ। तो ये आपको कब पता चलेगा? जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप अपने एंड पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नो बडी कैन गिव यू हायर बैंड्स इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग ऑन योर ओन एंड। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई भी आपको अच्छे बैंड नहीं दिला सकता। Take the IELTS progress check to give you an idea of how you are getting on with on your IELTS preparation test. अच्छा, IELTS टेस्ट की प्रिपरेशन के जो टेस्ट गिवन है उस पे ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट हैं। इवन के लास्ट टाइम भी सर हमाद ने IELTS लिसनिंग का टेस्ट जो है वो कुछ शेयर किया था, उसमें काफी सारे रीडिंग के, लिसनिंग, स्पीकिंग के अराउंड मोर देन 100 टेस्ट थे जो कि गिवन थे। आईडीबी की आपको वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे प्रैक्टिस टेस्ट। जब तक आप ये प्रैक्टिस टेस्ट नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन योर टेस्ट। और स्पेशली टाइम की टाइम जो आपकी स्टॉप वॉच है उसको ऑन कर लें।
या फिर अलार्म लगा लें 60 मिनट्स का, या ईच क्वेश्चंस के साथ आई वुड सजेस्ट कि ईच क्वेश्चंस के साथ जो है वो आप अलार्म लगा लें कि 20 मिनट्स मुझे इस क्वेश्चन को देने, और इसके बाद मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। नहीं तो आप हर क्वेश्चन को अगर 2-2 मिनट्स की स्ट्रेटजीज के साथ लेके चलना चाहते हैं, तो इट्स गुड फॉर यू कि आप किस तरह से आपका माइंडसेट किस तरह से फेमिलियर होता है टाइम के साथ। तो आप उसको लगाएं कि आप, हो सकता है कि आप हर 2 मिनट के बाद अलार्म सेट कर लें कि हर 2 मिनट मुझे एक क्वेश्चन पे 2 मिनट देने हैं बस। यूज ऑफिशियल आइल्स प्रिपरेशन मटेरियल्स। अब इसमें हमने जो आप लोगों को शेयर की हुई है कैम्ब्रिज आइल्स की बुक, वो सबसे बेस्ट है। उसके अलावा जो आइल्स की दूसरे प्रिपरेशन मटेरियल्स हैं नेट पे, यू शुड गो थ्रू देम। उनसे भी आपको फेमिलियरिटी होनी चाहिए। कुछ ऐसे आइल्स के टेस्ट हैं हमारे पास, जो कि कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसमें थोड़े डिफिकल्ट टेस्ट भी हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप आइल्स की कैम्ब्रिज की एक टेस्ट आइल्स कैम्ब्रिज से करें, और एक टेस्ट जो है वो ऑनलाइन करें। रोज अगर आप एक मॉड्यूल को फोकस करते हैं और एक मॉड्यूल के दो, अच्छा, अगर हम जो है वो दो चीजों को फॉलो करते हैं, या फिर एक दिन हम आइल्स कैम्ब्रिज के टेस्ट सारे करें, फिर एक दिन हम ऑनलाइन टेस्ट सारे करें, तो इट विल बी अ गुड स्ट्रेटेजी। दीज वर द बेसिक स्ट्रेटजीज। और अगर मैं डिटेल में जाना चाहूँ, तो लेट्स ओपन अप द रीडिंग टेस्ट। तो उसके अंदर जो मैम किरण, मेरी यस आवाज आ रही है? मैम। मैम यस किरण, आप स्क्रीन शेयर करें कैम्ब्रिज की जो बुक है हमारे पास 18 वाली। ओके, मैं भी करती हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। मैम भी ना यहाँ से स्टार्ट हो रही है रीडिंग। यस मैम। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो रीडिंग पैसेज दिया हुआ है, मैम इसको स्क्रॉल करते जाएं। देखिए ये रीडिंग पैसेज 1 है, नटमेग अ वैल्यूएबल स्पाइस। देन मैम इसको स्क्रॉल डाउन करें। देन वी हैव रीडिंग पैसेज, मैम नीचे करें। टोटल पैसेज मुझे बताना है, टोटल पैसेज कितने दिए हैं। रीडिंग पैसेज 2, जिसमें 14 to 26 क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। देन वी हैव रीडिंग पैसेज 3, जिसमें 27 to 40 क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं। तो हमारे पास टोटल और कितने पैराग्राफ्स हैं हर रीडिंग पैसेज में, किसी ने काउंट किया?
मैम बस मैम इट्स ओके, थर्ड पैसेज पे चलें। कितने पैराग्राफ्स हैं, लेट्स काउंट इट। मैम रीडिंग पैसेज 3 के पैराग्राफ्स काउंट करें, ईच एंड एवरीबडी। 1 2 3 4 5 6 7। देखो आई टोल्ड यू कि 7 से ज्यादा नहीं होंगे, GH तक हैं। यस है। मैम 7 है। मैम रीडिंग पैसेज 2 पे चलें। पार्टिसिपेंट्स में से कोई जो थोड़ी सी मेरी हेल्प करे इसके बारे में, ताकि मुझे लगे कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एनीवन? Do we have to read? No, we don't have to read. We just have to count the passages. How many passages are there? What type of questions we are given. So we are just going through our reading test. जैसे ऊपर से एक ऊपर का व्यू नहीं लेते हैं, लाइक जैसे we are just working like a drone जो ऊपर से मूवी बना रहा होता है। तो हम अभी जो ऊपर ऊपर का व्यू ले रहे हैं कि इसमें हमें कितने पैसेजेस दिए हुए हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो अभी हम जब ऊपर से सारा इसका व्यू ले लेंगे, उसके बाद हम वी विल डाइव डीप इनटू दिस आइल्स रीडिंग टेस्ट। मैम इसके भी 7 है पैराग्राफ। इसके भी 7 है। यस मैम। Somebody was there who is saying that I will count. No one? Okay. मैम किरण आप ही हेल्प कर दें। मुबश्शिर, सर मुबश्शिर, यस यू कैन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने इनके जो है वो ये ABC काउंट करना है ना? जी जी, ABC काउंट करना है। जो पैसेज में जितने पैराग्राफ्स दिए हुए हैं ये काउंट करने हैं कितने पैराग्राफ हैं, ताकि अच्छा, हमें एक आइडिया हो कि जनरली कितने पैराग्राफ हर पैसेज में हमारे पास आते हैं। नाउ वी गॉट टू नो कि किस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, हमें टाइम स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा इसके अंदर चाहिए। हमें ये पता चल गया कि 3 पैसेजेस हमें दिए हुए होते हैं इस क्वेश्चंस में। फर्स्ट में हमारे पास 1 to 13 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, सेकंड पैसेज में हमारे पास 14 to 26 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, और थर्ड वाले में हमारे पास 27 to 40 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। ये सबको पता चल गया? जी जी। मैं इसको काउंट कर दूं। हम्म A में 2 है, B में 2 है, 4 हो गए। नहीं, ऐसे नहीं करने हैं। जी, ए जो है वो एक ही पैराग्राफ कहलाएगा आपका, एक जब ही क्वेश्चन पैराग्राफ में। होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, ये एक ही पैराग्राफ कहलाएगा, क्योंकि ये अब एक ही चीज के बारे में बात कर रहा होगा। D में टोटल D तक इस पेज के ऊपर 4 बनते हैं, पेज 20 के ऊपर। और 6 हो गए, नहीं 7 हो गए जी 5 तक। 6 7 हो गए, टोटल 7। हम्म पैसेज 3 में भी 7 थे, पैसेज 2 में भी 7 है। मीन्स कि ऑलमोस्ट हमें 7 पैराग्राफ्स ही 7 मिलने हैं। सेक्शन मेंशन भी किया हुआ उन्होंने क्वेश्चंस के अंदर ना। हम्म फर्स्ट पैराग्राफ पे मैम, फर्स्ट पैसेज में कितने हैं? ऊपर जाएंगे मैम करण, स्क्रॉल अप करें। Now how many paragraph in it, Sir Mubashir? Let me count. 1 2 3 4 5 6 6 total 6 है। Yes नो sir, सर 7। ये 6 ही नहीं, है, वो लास्ट पे सी से ऊपर सी की उसी का पार्ट है, वो जो ऊपर टॉप हाँ, पे है ना, पेज जो नेक्स्ट वाला उसी का पार्ट वो लग उसको रहा है। कंक्लूड कर रहा है। ओके जी यहाँ पर मार्किंग क्यों नहीं हुई हुई, जैसे कि नीचे हुई हुई थी कि A B C D पैसेज के साथ लिखा हुआ था। यहाँ पे मेरा ख्याल है मार्किंग इसलिए नहीं हुई हुई सर कि यहाँ इस तरह के क्वेश्चन इस तरह के वो ना मार्किंग यहाँ इसलिए नहीं हुई है। अ, वो मार्किंग जी इसलिए जी नहीं हुई मैम कि बोल। उसमें क्वेश्चंस उस हिसाब से है ना,
जिसमें क्वेश्चंस पैराग्राफ के हिसाब से होंगे, मैचिंग हेडिंग्स होगी, या जिस पैराग्राफ से आपको जो है वो इंफॉर्मेशन सीख करनी होगी, उस उनमें पैराग्राफ के नेम्स दिए हुए हैं, हेडिंग्स दी हुई हैं ABC। और जिसमें पैराग्राफ वाइज क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस हैं सेंटेंस कंप्लीशन के, या जिसमें ऑलमोस्ट ओवरऑल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो उसमें आपको जो है ना पैराग्राफ की हेडिंग्स नहीं दी हुई होगी। सही। अब मैम आप इसमें जो स्ट्रेटेजी, अच्छा इसमें जो स्ट्रेटेजी हमारे पास है ना, सबसे पहले अब हम थोड़ा डीप में जाएं मैम। पैसेज 1 पे है ना, हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4। अब क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में हमें क्या कह रहे हैं, कह रहे यस हैं कि कंप्लीट द मैम नोट्स वन लो। से अब जो मैंने आपको कहा था कि सेंटेंस कंप्लीशन या फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। अब कंप्लीट हमें वन वर्ड यूज करना है। अच्छा ये बहुत जरूरी है कि हम क्वेश्चंस को प्रॉपरली पढ़ें, कि ये वन वर्ड कह रहा है या टू वर्ड कह रहा है, नॉट मोर देन 3 words, नॉट मोर देन 2 words, व्हाट एक्चुअली ही इज सेइंग, कि हमें कितने वर्ड्स इस फिल इन द ब्लैंक्स में डालने हैं। क्योंकि अगर हम जो है वो ये इंस्ट्रक्शंस, अगर हम ये एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस जो है वो गिवन, अगर हम ये इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ेंगे सही से, तो हम जो है वो आंसर सही एग्जैक्टली नहीं दे पाएंगे। द नटमेग एंड ट्री एंड फ्रूट। अब इसमें हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगी कि जो आप रीडिंग कर रहे हैं, अगर आप ऐसे रीडिंग करेंगे ना, somebody will do read। मैम पैसेज पे लेके चलें, मैम पैसेज 1 पे लेके चलें। Anybody will start to read this passage? मेरी वॉइस ऑडिबल है? Yes, ma'am, you're audible. So anybody will start to read this passage? Can I? Yes. All right. Can I, ma'am? Can I read it? Yes, of course. All right. The heading is Nutmeg, a valuable spice. The nutmeg tree, Myristica fragrans, is a large evergreen tree native to Southeast Asia. Until the late 18th century, it only grew in one place in the world, a small group of islands in the Banda Sea, part of the Moluccas or Spice Islands in northeastern Indonesia. The tree is thickly branched with dense foliage of tough, dark green oval leaves, and produces small yellow bell-shaped flowers and pale yellow pear-shaped fruits. The fruit is encased in a fleshy husk. When the fruit is ripe, the husk is placed into two halves along a ridge running the length of the fruit. Inside is a purple brown shiny seed, 2 to 3 centimeter long by about 2 centimeter across, surrounded by a lacy red or crimson covering called an aril. These are the sources of the two spices, nutmeg and mace, the former being produced from the dried seed and the latter from the aril. Nutmeg was a high-priced and costly ingredient in European cuisine in the Middle Ages and was used as a flavoring, medicinal, and preservative agent. Throughout the Throughout this period, the Arabs were the exclusive importers of the spice to Europe. They sold nutmeg for high prices to merchants based in uh, Venice, but they never revealed the exact location of the source of this extremely valued commodity. The Arab Venetian dominance of the trade finally ended in 1512 when the Portuguese reached the Banda Islands and began exploiting its precious resources. Always in danger of competition from neighboring Spain, the Portuguese began subcontracting their spice distribution to Dutch traders. Profits began to flow. सर excuse me। Yeah. अब देखें,
सबसे पहली जो टिप है ना, वो ये है कि अगर आप लोग इस तरह से वॉइस, अगर आपका रियल टेस्ट हो रहा है, ठीक है, अगर आपने रियल टेस्ट में, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें हम बाय वॉइस रीडिंग ही करेंगे, लेकिन अगर आपने जो है वो रियल टेस्ट में इस तरह से वॉइस रीडिंग की, तो इट विल टेक योर टाइम एंड इट विल ऑल्सो डिटैच योर अटेंशन, मतलब आपकी अटेंशन भी थोड़ी कम हो जाएगी रीडिंग से, क्योंकि आप एक टाइम में, जब आप स्पीक वॉइस करके जो है वो रीडिंग करेंगे बाय वॉइस, जैसे अगर मैं रीडिंग करूँ नेट में, जैसे अभी आपने रीडिंग की, बहुत अच्छी रीडिंग थी, अगर हम इस तरह से रीडिंग करेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हम इसको हार्ट रीडिंग पे ले जाएं, जैसे अगर अगर अभी आप सब अपने एंड पे ये प्रैक्टिस करके देखेंगे, जैसे अभी सर ने रीडिंग की 2 पैसेज, इसमें इनको 2 मिनट्स लगे, अगर यही पैसेज हम हार्ट रीडिंग करें, जैसे दिल दिल में पढ़ें, तो इट विल सेव अवर एनर्जी, इट विल सेव अवर टाइम, एंड इट विल ऑल्सो enhance our focus on what we are reading. Are you getting my point? Yes, ma'am. यस मैम। तो अगर अब हम देखें, लेट्स टेक टाइम, अब देखें अगर हम 1 मिनट लेते हैं और 1 मिनट में हम पढ़ के देखते हैं कि हम कितना पढ़ सकते हैं, अब बाय हार्ट रीडिंग करके देखते हैं, अभी हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स स्टार्ट, अभी 248 हो रहे हैं, लेट्स 249 तक देखते हैं हम कितनी रीडिंग कर सकते हैं। आर यू ऑल रेडी? यस। Let's start. Read by heart. Have you all done with the first paragraph? जी फर्स्ट पैराग्राफ तो पढ़ा जाता है एक आधे मिनट Hmm. के। Hmm. How was the experience? सबको ऐसा ही लगा जैसे मैंने भी बताया, कि अगर जी हम दिल में पढ़ेंगे तो जल्दी भी पढ़ा जाएगा और अटेंशन भी हम ज्यादा दे सकते हैं। इसमें ना मैं ऐड करूँगा, जब आप यस। ओरली पढ़ते हैं ना तो समटाइम हम अटक जाते हैं, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो हम ना उसको स्पेल करने के चक्कर में पड़े रहते हैं कि इसको माइंड में स्टोर करें, किसी तरह स्पेल करें ताकि हमारा जो एक्सेंट है ना सेट हो जाए। जब आप हार्ट बाय हार्ट पढ़ते हैं या माइंड में पढ़ते हैं तो फिर आपको स्पेल करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इसको। यस, एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट इज, कि अगर हम इसको दिल में पढ़ेंगे और इसको फोकस करेंगे, और इसके साथ साथ अगर हम अपनी इमेजिनेशन भी साथ साथ चलाएंगे, कि क्योंकि अब हम जो है वो साइलेंटली इसको पढ़ रहे हैं, हमारा फोकस ज्यादा है, हमारा माइंड ज्यादा उस पर वर्क कर रहा है, बिकॉज अब हमारे माइंड को जो है वो ना लिसनिंग एड्स यूज करने पड़ रहे हैं, ना हमारा माइंड जो है वो इस पे फोकस कर रहा है कि हम कैसे स्पीक कर रहे हैं, तो हमारा माइंड जो है वो सिर्फ एक चीज को फोकस कर रहा है कि हाउ वी आर रीडिंग दिस बाय जस्ट यूजिंग अवर साइटेडनेस एंड अवर माइंड। तो जब हम सिर्फ दो ही चीजें यूज कर रहे हैं तो टाइम भी कम लग रहा है, फोकस भी ज्यादा है, और इमेजिनेशन साथ साथ हो रही है, सारा काम जो है वो हमारा एग्जैक्टली क्या कर रहा है, सिर्फ आईज और माइंड से हो रहा है। Are you all getting my point? यस। So that was the first step. जिसने भी रीडिंग की थी, दैट रीडिंग वाज रियली नाइस, और हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, बाय वॉइस रीडिंग से ही प्रैक्टिस की जाएगी, ताकि जो दूसरे लोग हैं जिनको रीडिंग में कुछ मसला होता है, तो वो उससे थोड़ा जो है वो बेनिफिट ले सकेंगे किस तरह से रीडिंग करनी है। बट हम पहले इसको बाय वॉइस रीड करेंगे, फिर बाय हार्ट रीड करेंगे, ताकि हमें अच्छे से फोकस कर सकेंगे कि क्या कह रहे हैं इसमें। मैम, दैट वाज जैसे जी। आइल्स के टेस्ट में हम रीडिंग के मॉड्यूल में हमें कोई रफ पेपर दिया जाएगा कि हम जैसे रीडिंग कर रहे हो तो हम कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साइड पे लिखते रहें।
यस, वो देते हैं आपको पेपर, लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात अगर जो कंप्यूटर बेस कर रहे हैं ना टेस्ट, उनके लिए ये होती है कि वहां पर हाईलाइट के ऑप्शन होते हैं कि आप हाईलाइट कर सकते हैं। आप जो है वो उसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको येलो ब्लैक करना है कलर, वो हो जाएगा। आपकी जो राइटिंग है वो येलो में आ जाएगी, बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट करना है, वाइट एंड येलो करना है, 3 ऑप्शंस वर देयर कि आप इस तरह से कलर्स जो है उसको चेंज कर सकते हैं। आपके पास यू आर गिवन विद अ पेपर, रफ पेपर, पेंसिल, रबर एंड sharpener also there, so you can use it। कि आप मेन अगर पॉइंट्स लिखना चाहते हैं या मैचिंग हेडिंग्स के पॉइंट अपने पास नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मोस्टली आजकल सब उसी पे जाते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके पास ये ऑप्शन भी होता है कि यू जस्ट कॉपी द सम सेंटेंसेस, स्पेशली फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो आप यहाँ से एग्जैक्टली लाइन से कॉपी करके उसको पेस्ट कर देते हैं वहाँ पे आंसर में। तो इससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है वो नहीं होती हैं, क्योंकि स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगी तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। सही। ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास ये थी कि आपको जो रीड करना है वो बाय हार्ट करना है, क्योंकि स्पीकअप में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो ये आपकी दैट वाज योर फर्स्ट टिप टू हाउ टू सेव योर टाइम इन वाइल रीडिंग। अच्छा, उसके बाद अब आपको जो फर्स्ट क्वेश्चंस आपको दिए हुए होते हैं, मैम क्वेश्चंस पे लेके जाएं। अब ये जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इसमें इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, पहले आपको इन क्वेश्चंस को रीड करना है, देन यू विल गो टू फाइंड देयर आंसर्स। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको पहले जो है वो पैसेज को रीड करना है, फिर आप क्वेश्चंस पे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको क्वेश्चंस फुल रीड करने हैं, फुली रीड करेंगे आप क्वेश्चन, उसके बाद आप पैसेज रीड करेंगे। इसमें भी आप क्वेश्चंस पहले रीड करेंगे, उसके बाद आप पैसेज पे आएंगे कि आपको एग्जैक्टली फाइंड क्या करना है ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो जाए। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास क्योंकि टाइम सिर्फ 7 मिनट्स बचा है, तो मैं यही कहूंगी कि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं जो कि ऑर्डर में आते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऑर्डर में नहीं आते। तो वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो, कि कौन से क्वेश्चंस ऑर्डर में आएंगे, कौन से क्वेश्चंस ऑर्डर में नहीं आएंगे। दैट विल इजीली रैप अप योर होल आइल्स रीडिंग टेस्ट, कि आप किस तरह से लेके चलना है आपको पूरा टेस्ट। बिलीव मी, अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा ये। इसमें जो मेन टेक्निक हमारे पास यूज होती है वो होती है स्किमिंग और स्कैनिंग की। व्हाट इज स्किमिंग और स्कैनिंग? आप देखो, स्कैनिंग तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि स्कैनिंग अगर हम किसी चीज को, जैसे कंप्यूटर स्कैन कर रहा होता है कोई चीज, हम अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, या वेन एवर वी गो फॉर शॉपिंग और वट एवर वी वांट टू डू समथिंग। जैसे अगर हमें कभी हम बुफे सिस्टम पे चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी आई स्कैन करी होती है व्हाट एक्चुअली वी वांट टू ईट। रखी हुई तो बहुत सारी चीजें होती हैं, पर ऑब्वियसली नो वन ईट ईच एंड एवरीथिंग। तो हमारी आईज क्या करती हैं, पूरी मेन्यू पे स्कैन करती हैं, और फिर उसमें से जो हमारी मतलब की चीज होती है वी गो टू इट। तो इसी तरह से जब हम स्कैनिंग का मकसद ये होता है कि आप पूरे पैसेज को पढ़ें। जैसे अगर आपको दिया हुआ है कोई, जैसे मैंने पहले बताया था कि नोबेल प्राइज इस साइंटिस्ट से जो है वो बिलोंग करता है, तो आप स्कैन करेंगे पूरे पैराग्राफ को और उसमें ढूंढेंगे वो अपना कीवर्ड, जो कीवर्ड गिवन है। जैसे इसके अंदर दिया हुआ द लीव्स ऑफ द ट्री आर इन शेप, तो हम लीव्स है, ट्री है, शेप है, इन कीवर्ड्स को ढूंढ कर सकते हैं अपने पैसेज में। आप इन कीवर्ड्स को ढूंढ सकते हैं, तो ये स्कैनिंग हो जाएगी। आप पूरे उसको स्कैन कर लेंगे पैसेज को कि हमारा ये कीवर्ड कहाँ पर है। स्किमिंग क्या होती है? स्किमिंग इज कि आप किस तरह से अपना पैसेज को, पैराग्राफ जो गिवन है उनको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और उसका मेन आइडिया लेते हैं। अगर आप पूरा पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपकी कंफ्यूजन्स और ज्यादा आ जाएंगी। कि शुरू में ये मेरे साथ भी हुआ है कि जब मैं रीडिंग शुरू में कर रही थी तो मैं ईच एंड एवरी डिटेल पे चली जाती थी इजी क्वेश्चंस के लिए भी। तो ये हर किसी के साथ होता है। हम क्या करते हैं कि हम परफेक्शन लाने के लिए बहुत डिटेल में उसको पढ़ने लग जाते हैं। तो जब स्किमिंग, व्हाट इज स्किमिंग, कि आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है, उसका मेन आइडिया लेना है। जैसे सेंट्रल आइडिया समरी नहीं हम किसी पोयम की निकालते हैं, अब जब हम कोई पोयम या पोएट्री पढ़ने जाते हैं
तो हमें समझ में नहीं आती डिटेल। अगर आप उस पे जाएं, जो बड़े राइटर्स हैं उनकी पोइट्री पढ़ें, तो आपको ओवरऑल समझ में नहीं आएगी। आप क्या कहेंगे, मतलब आपको वर्ड टू वर्ड समझ नहीं आएगी, बट यू कैन गेट द आइडिया, सेंट्रल आइडिया, समरी ऑफ इट, कि हाँ इसमें ये बात हो रही है, जैसे किसी फ्लावर के बारे में बात हो रही है। आपको सेंट्रल आइडिया आप उसका ले सकते हैं। तो यही एग्जैक्टली हमें इसमें भी करना है कि रीडिंग को समझने नहीं बैठना है, एक एक सेंटेंस को नहीं पढ़ना है, आपको ओवरऑल आइडिया लेना है कि ओवरऑल आइडिया जो है क्या है इस पैसेज या पैराग्राफ का। आई थिंक एवरीबडी गेट टू नो कि स्किमिंग एंड स्कैनिंग क्या होती है। रीडिंग हम कैसे स्टार्ट करेंगे आज जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन था। सो नाउ इट्स टाइम ऑफ योर फीडबैक। 3 मिनट्स रह गए हमारे पास। किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया, कोई कंफ्यूजन हो, तो यू आर वेलकम। मैम मेरा क्वेश्चन था कि जो हमारे पास क्वेश्चंस में ऑप्शंस है, ये एज इट इज है जो हमारे पास पैसेज में इंक्लूड है, या फिर इनके सिनोनिम्स भी हो सकते हैं क्वेश्चन में? कुछ में एज इट इज होंगे, सिनोनियम्स हो सकते हैं, और स्पेशली जब आप मैचिंग हेडिंग्स पे जाएंगे, आप इंफॉर्मेशन सीकिंग पे जाएंगे, यस नो नॉट गिवन पे जाएंगे, उसमें तो पैराफ्रेजिंग है सारी। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि वोकेबलरी अपनी इनहांस करें, तो सिनोनियम्स आपको पता होंगे, पैराफ्रेज किस तरह से करते हैं किसी चीज को, तो आप इजीली जो है उसको टैकल कर सकेंगे। ओके, थैंक यू मैम। You're welcome. मैम ये जो पैसेज में सारे पैराग्राफ्स हैं, क्या ज़रूरी है मैंने उन सबको रीड करना है? क्योंकि अगर हम इस जो ये सामने बॉक्स है उसमें ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो फिंगर ब्लैंक्स हैं, इनके आंसर शुरू के आई थिंक 2 पैराग्राफ्स में ही लिखे हुए हैं, और लास्ट वाले का नहीं पता क्योंकि मैंने पूरा नहीं पढ़ा। यस तो ऑब्वियसली, ये जो मैंने आपको कहा ना कि कल हम इसको देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस ऑर्डर में आते हैं और कौन से क्वेश्चंस ऑर्डर में नहीं आते। तो ये जब हम स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आपको सिर्फ हो सकता है कि आपके सारे क्वेश्चंस एक लास्ट वाले पैराग्राफ से आ जाएं। हो सकता है सिर्फ फर्स्ट वाला पैराग्राफ को पढ़ना पड़े, हो सकता है कि आपको बीच वाले पैराग्राफ से, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमारे पास ऑर्डर में आते हैं, अगर आप बीच का कोई सा भी सेक्शन ले लें, सी पैराग्राफ है, लेट सपोज कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सी पैराग्राफ से आया है, तो सी पैराग्राफ के बाद अगर ये ऑर्डर में है, और ऑब्वियसली ये ऑर्डर में ही होते हैं, तो आपके पास या तो सी पैराग्राफ में होगा या आगे डी में होगा, आपको ए भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही स्ट्रेटजीज हैं जो कि हम फॉलो करेंगे तो हमें पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा पैसेज किस में पढ़ना पड़ता है, जब आप मैचिंग हेडिंग्स करते हैं, यस नो नॉट गिवन करते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको स्किमिंग एंड स्कैनिंग पे जाना होता है। ईच वर्ड की जो है वो मीनिंग देखने नहीं बैठना होता, क्योंकि हम ऑब्वियसली हम कितने एक्सपर्ट हो जाएं, हम हर वर्ड की मीनिंग किसी को भी नहीं आएगी कि क्या लिखा हुआ है। थैंक यू मैम। वेलकम। अल्लाह हाफिज एवरीवन। लाइट टाइम होने के है। किसी को कोई क्वेश्चन? नो मैम, अल्लाह हाफिज़।